प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, इसको हम एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर जैसे हम बोलें कि अबाउट मास सब्सटेंस A of mass A1 M1, temperature T1 and specific heat S1. Another substance B of mass M2, temperature T2 and specific heat S2. Both are mixed together and form A plus B, दोनों को हमने मिक्स कर दिया. तो here let temperature of mixture is T0, final temperature, and here the condition let T1 is greater than T0, T1 is greater than T2, then body A loses the heat, quantity of heat, because कि T1 ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता है, तो A बॉडी हीट को देगी B को. इट मीन्स कि B का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और A का टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो फाइनली यदि हम टेम्परेचर डिफरेंस देखें बिटवीन A एंड द कॉमन मिक्सचर, देन इट विल बी T1 माइनस T0, ये डिक्रीज होगा, एंड इधर जो आएगा ये होगा T0 माइनस T2, ये इंक्रीज होगा. तो इतना टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा और इतना टेम्परेचर इसका B बॉडी का इंक्रीज होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर हम कैसे लिख सकते हैं कि हीट गिवन आउट, क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन आउट, क्वांटिटी ऑफ हीट given out equal to quantity of heat taken in. तो given out by A and taken in by B, कितनी देगा ये given out by A and taken in by B, it will be M1 S1 T1 minus T0 is equal to M2 S2 T0 minus T2. यहाँ हम लिख सकते हैं कि M1 S1 डेल्टा T1 M2 S2 डेल्टा T2. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर. इस पर एक न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं जिससे कि ये आपका क्लियर हो जाएगा. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इन कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू द वेपर. इस सिस्टम को हम देखें कि ये कैसे स्टार्ट होता है. -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है वो पहले उसका क्या प्रोसीजर होगा, इस एक पूरे सिस्टम पर अपन स्केच करते हैं इसको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइस इज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, convert ice at 0 degree centigrade, then water at 0 degree centigrade, then water at 100 degree centigrade, then vapor at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इसकी स्टेजेस होंगी. हम जो कैलकुलेशन जो हमारी स्टार्ट होती है इसमें बिकॉज देर इज नो एनी स्टेट चेंज, तो हियर Q1 विल बी इक्वल टू M S डेल्टा T, फॉर्मूला लगेगा. हियर द चेंज इन स्टेट, लैटेंट हीट और इसमें अपने को डिफाइन करना था
before this example, the quantity of heat required to convert 1 gram of ice into the 1 gram of water uh, is called the latent heat of melting, and it is denoted by Q is equal to ml. There is no any change in temperature at the time of melting, and here L is the latent heat. This is Q2, and Q3 will be equal to ms delta T. Again here the increase in temperature, and in last case Q4 will be ml. Here L is latent heat of vaporization. The total quantity Q will be m 10 gram of ice. Specific heat of ice is 0.5. Temperature difference is 20, because -20 से 0 डिग्री पर आ रहा है, प्लस ml, m is 10 gram and L is latent heat of ice is 80. 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 80 कैलोरी हीट देनी होती है. देन द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, plus 10, m is 10. Specific heat of water is 1 in CJ system, and here delta T, temperature difference, is 100, plus Q is equal to ml. In last case, here there is no change in the temperature. Here only the state change from water to the vapor, and heat required to change 10 gram of water into the vapor will be Q is equal to ml. M is 10 and L is 540. The latent heat of vaporization is 540. Then Q can be calculated: 100 plus 800 plus 1000 plus 5400. That is 0, 0 again, 4, 8, 12, 13, 3, 1, 5, 7, 7300 calorie. Heat required to convert the 10 gram of ice at -20 degrees centigrade into the water vapor will be 7300 calorie. Now come to the latent heat. The heat required to convert 1 gram of substance into one state to another is called the latent heat. The heat required to convert one state to another of 1 gram of substance is called latent heat. किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करें, जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हीट हमको चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट. जैसे लैटेंट हीट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे हम बोले कि 1 ग्राम आइस को हम 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी हमको, दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. और latent heat is divided into 2 parts. One is latent heat of melting और freezing. आइस को वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए भी उतनी हीट को उसमें से हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो फ्रीजिंग की जो क्वांटिटी, फ्रीजिंग पर जितनी हमको हीट निकालनी होगी, उतनी हीट लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग में हमको मिलती है. So quantity of heat remains the same in both the cases. The heat required to convert 1 gram of solid to liquid is called latent heat of melting, and
Its formula is given by Q is equal to ml and L is equal to Q by m, and unit of L is calorie per gram. इसके और भी यूनिट्स हो सकते हैं. कैलोरी पर ग्राम इक्वल टू किलो कैलोरी पर केजी. तो हम डेफिनेशन यदि हम इसमें लेना चाहें तो वैसे दे सकते हैं, और या हम ले सकते हैं कि भी 4200 जूल per kg. Next topic is latent heat of vaporization. The quantity of heat required to convert 1 gram of liquid into 1 gram of gas is called latent heat of vaporization. Its formula is also given by Q is equal to ml. Here L is equal to Q by m, and here L is latent heat of vaporization. The unit of L will be again calorie per gram. 1 calorie per gram equal to 1 kilocalorie per kg equal to 4200 joule per kg. Latent heat of melting of ice is 80 calorie per gram or 80 kilocalorie per kg, that is 333 into 10 raised to the power 3 joule per kg. Similarly, latent heat of vaporization is approximately 540 calorie per gram, that is 540 kilocalorie per kg, that will be equal to 2256 into 10 raised to the power 3 जूल पर केजी. एक्चुअली जब किसी भी सब्सटेंस का हमको केवल स्टेट चेंज करना हो, जैसे हम सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में जाते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, केवल स्टेट चेंज होता है. तो जो भी हम हीट उस समय उसको देते हैं, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, उसको हम हिंदी में यदि वर्ड यूज करें तो गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, बिकॉज की जो भी हीट उस सब्सटेंस को दी जा रही है उससे कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, केवल स्टेट ही चेंज हो रहा. सो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. एंड फॉर आइस इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम और 80 किलो कैलोरी पर केजी. It is equal to 333 into 10 power 3 joule per kg. And same as when the 1 gram of water converts into the water vapor, then latent heat required 540 calorie per gram. वह 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 540 कैलोरी हीट की जरूरत होती है. That heat is called latent heat of vaporization. यहाँ पर भी जब वाटर बॉयल होने लगता है तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाता है, और 100 डिग्री के बाद बॉइलिंग के थ्रू उसका वेपराइजेशन होता है, और जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होता. जब वाटर वेपर हमको मिलती है तो वेपर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम. इट इज ऑलवेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्योर वाटर. यदि इम्प्योर वाटर होता है तो टेम्परेचर डिफरेंट होता है, या प्रेशर हम चेंज करते हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर हम मानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. और हाई टेम्परेचर होने की वजह से हम जैसे प्रेशर कुकर को यूज करते हैं, तो प्रेशर कुकर से
हम जल्दी खाना इसलिए पका पाते हैं बिकॉज की बॉइलिंग टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेशर. So when pressure is increases, temperature, boiling temperature of water also be increase. Now come to the difference between evaporation and boiling. Difference between evaporation and boiling. इसको हम एक टेबल फॉर्म में डाल सकते हैं. Evaporation and here boiling. The first point is the evaporation process. हम इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं बिकॉज की ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. Evaporation occurs at all the temperatures. जैसे हम बोलें कि बॉइलिंग जो होता है वो केवल एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है. जैसे वाटर की बॉइलिंग है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी. बट evaporation of any liquid or evaporation of water will be executed at each and every temperature. लो टेम्परेचर पे भी evaporation कंटिन्यूसली होता है. तो दिस प्रोसेस at all the temperature and boiling at particular temperature. For example, boiling point of water is 100 degree centigrade, but evaporation process will be held at each and every temperature. At low temperature पे भी evaporation continuously होता है. Second point is it is a slow and invisible process. जैसे हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वेपराइजेशन होता है. चाहे किसी भी टेम्परेचर पे हम छाया में यदि हम सुखाएंगे तो भी कपड़े सूखते हैं और धूप में सुखाते हैं तब भी सूख जाते हैं. तो एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता है. इट टेक्स प्लेस एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर. बट बॉइलिंग केवल पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा. जैसे वाटर की बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है. किसी पर्टिकुलर ऑयल की बॉइलिंग उसके किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी. बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स डिफरेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिक्विड बट रिमेन्स द सेम फॉर वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. जैसे हम बोलें कि भाई वाटर को यदि हम लें तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यदि वो प्योर वाटर है और नॉर्मल एनटीपी पे हम उसको बॉईल कर रहे हैं. Next, third point is it takes place only on the surface of liquid. बॉइलिंग के लिए हम सेकंड पॉइंट लेते हैं. इट इज रैपिड एंड विजिबल प्रोसेस. थर्ड पॉइंट इज it takes place only on the surface of the liquids. It takes place throughout the liquid. जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो पूरे लिक्विड में एक साथ होता है जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास है. It produces the cooling effect. जब evaporation होता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है ये. जैसा हम इसका एग्जांपल लें कि हम घरों में जो मटकी भरते हैं उसमें कंटिन्यूसली evaporation होता रहता है और उसका जो कूलिंग इफेक्ट आता है उसके थ्रू उसमें भरा हुआ पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. तो जब भी evaporation होता है तो evaporation होने के लिए एक्चुअली जैसे ही वो स्टीम में हम बोलेंगे या वाटर वेपर में वाटर कन्वर्ट होता है तो वो हीट उसी के अंदर से कंज्यूम करता है. मतलब कहीं बाहर से कंज्यूम करके evaporation नहीं होता. evaporation का प्रोसेस विद इन द सिस्टम होता है. जैसे मतलब वाटर है तो वाटर के अंदर से ही उसके मॉलिक्यूल्स हीट को गेन करते हैं और evaporation होता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं. जबकि बॉइलिंग जब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग होता है तो वहां पर कूलिंग इफेक्ट नहीं होता. इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट.
does not produce cooling effect. And last point is, during the process there is a variation in the temperature, but in boiling, during this process there is no change in temperature. There is a variation in temperature. In this process, temperature remains constant. Now come to the next topic, thermal expansion of substance. There are three types of expansion. जैसे हम इसका मीनिंग समझें कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन होता है, मीन्स कि वो एक्सपेंड होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से उनका एक वॉल्यूम में एक्सटेंशन होता है, या हम लेंथ में किसी वायर को लें तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एक्सपेंशन है उसको हम कॉमनली थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे केवल, तो उसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। वन इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लेट at 0 degree centigrade, initial length of a wire is L0, या L ले लेते हैं according to the book, is small l, and at T degree centigrade it will be L T. Then change in length LT minus L, that is delta L, and change in temperature is T minus 0, that is delta T हम ले सकते हैं। So according to expansion rule, the change in length is directly proportional to initial length. The initial length जितनी ज्यादा होगी, जैसे हम बोले कि 1 मीटर वायर को हम गर्म करते हैं 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, यदि 2 मीटर वायर को गर्म करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि इनिशियल लेंथ जितनी ज्यादा है उतना ही इंक्रीज इन लेंथ होगा। इट मीन्स द चेंज इन लेंथ, इट मीन्स डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ मीन्स एल। दिस इज फर्स्ट, एंड सिमिलरली change in length is directly proportional to change in temperature, or delta L is proportional to delta T. It is also depends on the nature of substance. Change in length depends on nature of substance. From first to second, delta L is proportional to L delta T, and delta L is equal to alpha L delta T, and alpha is equal to delta L upon L delta T. Here alpha is coefficient of linear expansion. The coefficient of लीनियर एक्सपेंशन। ऐसे यदि हम एरिया में एक्सपेंशन को देखें कि कोई बहुत थिन प्लेट है, इसका लेंथ एंड ब्रेथ हमको दिया हुआ है, तो उसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन
coefficient beta will be equal to delta A. This means change in area upon initial area into delta T. And volumetric expansion, volume expansion, gamma is given by delta V upon change in volume upon initial volume into change in temperature. And we know that alpha is to beta is to gamma will be equal to 1 is to 2 is to 3. इस रिलेशन को हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर आपके लेवल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. हम इसी को याद रख लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. हियर अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड बीटा इज एरियल हम बोल सकते हैं या सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट, एंड सेम इज गामा द volume expansion, the coefficient of volume expansion, and alpha is to beta is to gamma equal to 1 is to 2 is to 3. Transfer of heat. How to transfer the heat from one place to another? Transfer of heat. There are three methods of transformation of heat. One is conduction, second is convection, and third is radiation. इन तीनों को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा मीन्स कि वर्बली समझ लेते हैं. जैसे कि कंडक्शन जो है, क्योंकि ये थ्योरी का टॉपिक है, कंडक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस है रिमेन्स एट द सेम प्लेस बट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस. जैसे हम बोले कि किसी भी आयरन रोड को हम गर्म करते हैं, तो एक एंड यदि हमने कहीं हीटअप कर रहे हैं तो दूसरे एंड तक धीरे धीरे उसमें वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटअप हो जाता है, और जबकि उसके मॉलिक्यूल्स या उसके शेप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता. इट मीन्स द हीट इज ट्रांसफर्ड विद द कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर. मतलब जब से ही हम एक एंड को, जो रोड की एक एंड है, उसको जब हम हीट अप करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के उनका अपना जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है. तो वाइब्रेशन के थ्रू वो दूसरे आगे वाले मॉलिक्यूल्स को उस एनर्जी को पास थ्रू करते हैं. इस तरीके से कंटिन्यूसली वाइब्रेशन और कॉलिजन के थ्रू ये एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है और वो रॉड पूरी हीटअप हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. इन द कंडक्शन प्रोसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स एट द सेम प्लेस बट ओनली ड्यू टू द वाइब्रेशन एंड इन प्रोसेस द कॉलिजन एट द मतलब कॉलिजन वाइब्रेशन के साथ साथ जब कॉलिजन होता है, क्योंकि जब वाइब्रेट करेगा तो एम्पलीट्यूड जब बढ़ेगा तो वो दूसरे एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा थ्रू कॉलिजन, और सेम प्लेस पे रहते हुए ये एक, जैसे हम बोले कि भाई एक बच्चों की हमने एक सीधी लाइन लगा दी, पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले को पुश किया, धक्का लगाया, आगे वाले ने और उसके आगे वाले को पुश किया, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one to another, then by and by it reaches the next end. In the second process, convection, तो ये जो कंडक्शन प्रोसेस है ये सॉलिड में ही होता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है अपने प्लेस पे रहते हैं, अपने प्लेस को नहीं छोड़ते. कन्वेक्शन जो प्रोसेस है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस को चेंज करते हैं बट रिमेन्स इन द वॉल्यूम, इंटैक्टेड वॉल्यूम. जैसे हम बोलें कि जैसे लिक्विड्स है तो हम गर्म करते हैं, जैसे हम एक बॉयल होते हुए पानी में एक चाय का दाना डाल दें तो वो पूरे उसके वॉल्यूम में घूमता है, बिकॉज ऑफ कि उसके एटम्स भी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी उस पूरे वॉल्यूम में मूव करते हैं. तो कन्वेक्शन मेथड में
मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स प्लेस टू प्लेस चेंज करते हैं, बट इट रिमेन्स इन विद इन द वॉल्यूम। तो इसमें मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस चेंज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज रेडिएशन। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के थ्रू, मतलब हम ये बोले कि रेडिएशन के थ्रू जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे सन से अर्थ के ऊपर जो हीट रेडिएशंस आते हैं, जो रेडिएशंस यहाँ पर आते हैं, उन बीच में वैक्यूम होता है, वहां पर कोई भी एनवायरमेंट नहीं होता, वहां पर कोई सराउंडिंग नहीं होती, मतलब हम बोलें कि मतलब कोई मीडियम नहीं होता, तो भी वो हीट रेडिएशन तक आते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि किसी भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, इट कैन बी प्रोसेस्ड इन द वैक्यूम आल्सो, सो इट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है, इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती।